Hello student, welcome to the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva online education. I abhay vyas is today resuming our first chapter with the point that is the types of software. In the last lecture we have discussed different types of software with the example. Right, this particular chart we have done. Today we are going to discuss each and every software in depth. In that case, the first type of software we have seen that is system software. पहला टाइप का सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर is a set of one or more programs that are designed to control the operation of a computer system. Right? The main focus of system software is to control the operation of computer system. सभी जो ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं उसे कंट्रोल करने का काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. These programs are written to assist usage of a computer system. Right? Basically, whatever the instruction we are going to give to the computer for the execution, that instruction which is we are giving for the execution, this instruction is controlled by the system software. Right? System software has such kind of program which can control all the operation based on the execution of all the instruction. Right? So कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के जो भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं, दैट टास्क वो टास्क जो है उसके ऊपर कंट्रोलिंग करने का काम जो है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. राइट? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं. दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड operating system, interpreters, compilers and assemblers. So these all are the example of system software. ये सारे जो है वो system software के examples हैं. उसके अंदर जो है वो पहला example we are going to discuss, that is operating system. Right? Basically operating system is a master control program that runs the computer. Without operating system you are not able to execute any task in a computer system. So all the control flow which is managed by operating system, सभी जो कंट्रोल के फ्लो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी आप इनपुट देते हो उसके ऊपर प्रोसेसिंग और एट लास्ट आउटपुट, उन सभी को कंट्रोलिंग करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. राइट? जब भी कंप्यूटर आप शुरू करते हो, एट दैट टाइम द फर्स्ट प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम. जब भी कंप्यूटर शुरू होता है तब से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क जो है वो शुरू हो जाता है. और जब भी आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो, मीनवाइल जितने भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट? ऐसे कई पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम आपको यहाँ पर दिया गया है. दैट इज MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एंड यूनिक्स. दिस ऑल आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जाम्पल. द नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज अ कंपाइलर. राइट? कंपाइलर एक तरह का प्रोग्राम है. कंपाइलर इज वन टाइप ऑफ प्रोग्राम which translates high level language program into machine language. Right? ये क्या करता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर जो भी कंटेंट आप टाइप करते हो उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर. राइट? क्योंकि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, so that our high level language which is converted into machine language. But this program's main purpose is it converts the whole code, ये पूरा जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसे एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर. राइट? और जो भी अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ तो दैट एरर विच इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर. अगर कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपरली हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड जो है वो नहीं लिख पाते, कई जगह आप मिस्टेक करते हो. सो दैट पर्टिकुलर मिस्टेक विल बी आइडेंटिफाइड बाय दिस स्पेसिफिक program and that error which is raised to the user, that solve the error. After solving the error, the particular program which is executed, it's all the instruction and ये जो program है वो सभी instruction को convert कर देगा machine language के अंदर. और उस program, ये जो program ये task perform करता है ना translation का, उस program का नाम है object program. यहाँ पर देखो ये line में दिया गया है, the translated program is called the object program. जो भी translation होता है ना program का उसे आप object program कह सकते हो. और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो होता है वो
ये कन्वर्जन को सेव करता है अपने मशीन के अंदर, राइट. सो दिस इज द मेन टास्क ऑफ कंपाइलर. इट कन्वर्ट्स वर्ड कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू machine language. Then the next system software, that is interpreter. Interpreter is a program which translates one statement of high level program into machine code. ये वर्क तो सेम ही करता है कंपाइलर के जैसा, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो हाई लेवल लैंग्वेज की लाइन होती है उसके अंदर लाइन बाय लाइन उसे ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट. सो हियर द होल कोड इज नॉट ट्रांसलेटेड, इट ट्रांसलेट्स ओनली लाइन बाय लाइन कोड. यहाँ पर भी वन बाय वन जो भी लाइन जो है वो एक एक लाइन कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, और उस मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कह सकते हैं, राइट. बट यहाँ पर अगर किसी लाइन के अंदर अगर कोई एरर आई तो वो एरर भी प्रॉम्प्ट की जाती है और आप जो है वो एरर को सोल्व भी कर पाते हो. सो मेन पर्पज आपको ये याद रखना है कि कंपाइलर जो है वो सारे पूरे कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर जो है वो वन बाय वन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, राइट. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा स्लो है कन्वर्ट करने में, जबकि कंपाइलर जो है वो फास्ट है, क्योंकि इंटरप्रेटर में वन बाय वन लाइन कन्वर्ट होती है और कंपाइलर में पूरा कोड एक साथ कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज में जनरेट होता है, राइट. दिस इज द मेन यूज ऑफ इंटरप्रेटर. नेक्स्ट थिंग, दैट इज असेंबलर. Assembler is a program which translates assembly language program into machine language. क्या करता है assembler? जो assembly language के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसके अंदर जो भी assembly language होती है उसके अंदर थोड़े थोड़े इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं. तो कंप्यूटर के साथ हम मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं कर पाते क्योंकि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. सो मशीन लैंग्वेज के बाद आई असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज में हम कई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते थे, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स के कई कॉम्बिनेशंस के साथ हम कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर पाते थे. तो दैट पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज विच इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ असेंबलर, राइट. सो हियर असेंबलर इज अ प्रोग्राम. ये एक तरह का प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर आपका कोड को कन्वर्ट करता है, right. So this is all about the assemblers, right. This is all about the system software. ये सारी डिस्कशन हमने जो की वो थी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. Now we are going to discuss about the application software. So basically application softwares are computer program designed to help the user in performing a certain type of work. That means whatever the personalized work, जो भी personalized आपका वर्क होता है उसे अगर आपको परफॉर्म करना है तो यू नीड अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऐसे कौन कौन से पर्सनलाइज वर्क हो सकते हैं? तो या तो आपको मार्कशीट प्रिपेयर करनी होती है, या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, या तो आपको कोई पेंट ड्रॉ करना होता है. सो दिस ऑल आर द पर्सनल टाइप ऑफ वर्क. सो दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक वर्क यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, packages and utilities, in which the first type, that is the packages. So basically a packages is a computer application consists of one or more programs created to perform a particular type of work, right. यहाँ पर packages जो है उसके अंदर क्या होता है कि packages के अंदर एक या तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो इकट्ठा होते हैं, और वो प्रोग्राम का मेन पर्पस होता है कोई एक प्रकार का कार्य हमें परफॉर्म करके देना. तो वैसे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसर. आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सुना होगा और आपने यूज़ भी किया होगा, राइट. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम पैकेज, राइट. अकाउंटिंग पैकेज, अगर आपको कोई अकाउंटिंग के बारे में डेबिट क्रेडिट के बारे में कोई कैलकुलेशन करना है तो ऐसा भी एक पैकेज आता है जिसके अंदर आप ये परफॉर्म कर लेते हैं. नेक्स्ट देयर इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. आप लोगों ने एक्सेल के बारे में सुना होगा जिसके अंदर आप मार्कशीट प्रिपेयर कर सकते हो, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द स्प्रेडशीट. सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. देन ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन पैकेजेस, राइट. ग्राफिक्स का नाम आया तो यू कैन कंसिडर माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऑल्सो, यू कैन कंसिडर द फोटोशॉप काइंड ऑफ टूल ऑल्सो.
एंड प्रेजेंटेशन का मतलब यू कैन प्रिपेयर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये सारे जो है वो पैकेजेस है, ये सारे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आप कंप्यूटर के अंदर मैनेज कर लेते हो, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सो विच इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप। नाउ नेक्स्ट दैट इज यूटिलिटीज। कंप्यूटर के अंदर जो यूटिलिटीज आती है, दैट मीन्स यूटिलिटी इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क ऑन द कंप्यूटर और ऑन सिस्टम कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर के अंदर आप रूटीन जो वर्क करते हो वो तो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेज कर लेता है, बट ये रूटीन वर्क के अंदर भी कई बार मेंटेनेंस आता है, कई प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, राइट। सो वो यूटिलिटी पैकेजेस के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। दैट इज बैकअप। कंप्यूटर के अंदर बैकअप का मतलब ये है कि आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर जब भी आप डेटा को सेव करते हो कंप्यूटर में, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि भाई कई बार कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेमोरी जो है वो बिगड़ जाए या तो डेटा करप्ट हो जाए, मतलब डेटा यूज़ करने लायक ना बचे। तो आप जो भी डेटा को कंप्यूटर में सेव करते हो उसे एज अ बैकअप उसकी दूसरी कॉपी जो है वो भी दूसरी कॉपी भी ले लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर ओरिजिनल डेटा में कोई मिस्टेक आई, कोई प्रॉब्लम आया, तो उसके बैकअप के अंदर से आप ये डेटा को फिर से गेट कर पाते हैं, राइट। सो बैकअप का मतलब ये कि आप ओरिजिनल डेटा की एक कॉपी जो है वो रखते हो, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ओरिजिनल डेटा में कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी कॉपी में से आप जो है वो डेटा को फिर से गेट कर सको। देन द एंटीवायरस। कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, आप सभी को पता है वायरस का यूज़ क्या होता है। वायरस जो है वो एक तरह का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर हमारे डेटा जो होता है उसे डैमेज करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को भी डैमेज करता है, कई बार हमारी मेमोरी जो है उसे भी ये डैमेज करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम जो है वो वायरस करता है। सो वायरस को कंप्यूटर के अंदर से डिलीट या तो रिपेयर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट। सो एंटीवायरस इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देयर इज डिस्क डिफ्रैगमेंटर। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि वी हैव स्पेसिफिक डिस्क अवेलेबल इन अवर कंप्यूटर लाइक C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, बट कई बार ऐसा होता है कि कई ड्राइव को हमें जो है वो फ्री करना होता है, उसे हमें फॉर्मेट करना होता है, या तो कई बार हमें कई ड्राइव को नया क्रिएट करना होता है। वी हैव ऑलरेडी सम ऑफ द ड्राइव्स अवेलेबल इन अवर कंप्यूटर, दैट इज लॉजिकल ड्राइव C, D and E, but if we would like to add more drives or if you would like to remove some drive, so you can do this particular modification operation by disk fragmenter। और डिस्क फ्रैगमेंटर क्या करता है, मेमोरी को जो है वो फ्री करता है, या तो नई मेमोरी को, लॉजिकल मेमोरी को क्रिएट कर आपको देता है। तो ये मेमोरी के साथ जो मॉडिफिकेशन का वर्क होता है वो डिस्क फ्रैगमेंटर करता है। गेटिंग? दिस इज अबाउट द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट term, that is a tricky term. So let's quickly solve the tricky term, in which the first term, that is RAM, stands for random access memory. ROM stands for read only memory, ये सारे इसके फुल फॉर्म है। CD-ROM stands for compact disk read only memory। आप सभी को ये फुल फॉर्म जो है वो याद रखने हैं, एग्जाम में ऐसे फुल फॉर्म आएंगे। नेक्स्ट there is DVD stands for digital versatile disk। then बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, राइट। बिट का मतलब जो है वो बाइनरी डिजिट, और बिट या तो 0 होता है या तो 1 होता है। बिट के अंदर 2 ही आते हैं, या तो 0 या तो 1। देन बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के 8 बिट जब इकट्ठा होते हैं तो एक बाइट बनता है। निबल, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट। देन वर्ड, आप वर्ड किसे कहोगे, तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ बिट रिप्रेजेंटिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट फॉर्म्स द बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट फॉर अ कंप्यूटर, राइट। इसे हम वर्ड कहेंगे। देन कमांड का मतलब जो भी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे उसे हम कमांड कहेंगे। नेक्स्ट देयर इज प्रोग्राम। सो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर एंड रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं,
वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं. देन लो लेवल लैंग्वेज दैट मीन्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर 0 और 1 का यूज होता है. राइट, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. देन हाई लेवल लैंग्वेज दैट मीन्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड, जिसके अंदर इंग्लिश वर्ड का यूज होता है, या तो मैथमेटिकल सिंबल्स या तो नंबर्स का यूज होता है, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. देन सोर्स प्रोग्राम इज बेसिकली अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज. जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं. देन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट मीन्स ट्रांसलेटेड प्रोग्राम. जो प्रोग्राम इंटरप्रेटर या तो कंपाइलर ट्रांसलेट कर मशीन लैंग्वेज में लिख लेता है, उससे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं. राइट, सो दिस इज अबाउट द ट्रिकी टर्म. नेक्स्ट देयर इज अ मेमोरी बाइट इन विच द इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. देयर इज अ लाइट पेन इज अ pointing device that can be used to select the option by simply pointing at the time. Right, लाइट पेन से आप किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हो. Then a scanner copies an image and stores it on a computer. कंप्यूटर के अंदर जो है वो किसी भी इमेज को कैट कर एज अ सॉफ्ट कॉपी स्टोर करता है. देन स्कैनर का जो है वो टोटल 4 टाइप्स दिए गए हैं बुक के अंदर, फ्लैट बेड, शीट बेड, हैंड हेल्ड एंड ड्रम स्कैनर. Then digital camera can be used with a computer monitor and applications like video conferencing or take photograph that can display in a suitable software. तो डिजिटल कैमरा के अंदर आप फोटो भी गेट कर सकते हो और वीडियो भी शूट कर सकते हो. Then a barcode reader is a device that can read special lines called barcode. Right, प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड लिखा हुआ होता है उसे ये बारकोड रीडर रीड करता है और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में स्टोर करता है. देन आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने देखा है स्पीकर और एलसीडी प्रोजेक्टर. तो स्पीकर का यूज जो है वो बेसिकली सॉन्ग सुनना होता है. यू कैन स्पेसिफिकली लिसन द सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसके द्वारा आप स्पीकर की मदद से सॉन्ग जो है वो सुन सकते हो. देन एलसीडी प्रोजेक्टर. राइट, एलसीडी प्रोजेक्टर से आप जो है वो किसी भी कंप्यूटर के स्पेसिफिक डेटा को एक बड़ी स्क्रीन में बड़े व्यूइंग एरिया के अंदर देख सकते हो, सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय यू इन अ बिग स्क्रीन. राइट, देन द memory contains the primary memory or primary memory having 2 types, that is RAM and ROM. राइट, तो यहाँ पर जो है वो मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करने की मैकेनिज्म दी गई है, दैट इज 1024 बाइट्स, दैट मीन्स 2⁻10 बाइट्स, दैट इज 1 KB. 1 KB का एक फॉर्मेट है. देन ये जो है वो 2 KB का फॉर्मेट, 1 MB का फॉर्मेट है. देन 1 GB एंड 1 TB. ये सारे फॉर्मेट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिए. राइट, सो यू कैन रिवाइज द प्रीवियस वीडियो इफ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस. देन secondary storage device contains CD-ROM and DVD. Here CD-ROM having 2 types, that is CD-R and CD-RW, that is CD recordable and CD rewritable. Then CD-ROM and DVD-ROM are similar. ये दोनों चीज़ जो है वो similar है, but DVD के अंदर आपको storage capacity 25 times more मिल रही है as comparing with CD-ROM. Then we have discussed the computer languages. Basically computer languages having 2 types, high level language and low level language. Right, in low level language the machine language is there which contains 0 and 1. Right, and in high level language contains English word, mathematical symbol and numbers. Then we have discussed about the software. Basically software is a set of computer program that are used to running or operating computer system. जो computer system को operate करता है उसे हम software कहते हैं. सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये इस वीडियो के अंदर ही टॉपिक आ गया था. जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने लर्न किया था. जो सिस्टम को ऑपरेट करता है वो दैट इज कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट कैन हेल्प यू टू परफॉर्म योर स्पेसिफिक टास्क. जिसके अंदर हमने पैकेजेस के बारे में डिस्कस किया था और यूटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया.
So this is all about this chapter number 1. I will provide you the soft copy of solution of this exercise. Okay. So we are completing the chapter number 1 today. In the next lecture we will start with the chapter number 2.